Good morning, student. Hope you all are good and staying at your home safely. So, student, today, as I told you that before, I have explained you diary entry in these 3 days. First day, I had given you your explanation, introduction, features, and the format of diary entry. And 2 days I had given you examples to write down the diary entry so that you will get in a habit of writing down the diary entry. Now today, that is 3rd September 2020, I'll start my course with the grammar portion, that is verb. So students, all of you know that a verb is a word used to describe an action, state or possession, or you can say that is an action word. So verb को हम लोग हमेशा से शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, that verb is an action verb. But a verb is a word that tells or asserts something about a person or a thing, comes from the Latin verb in a word. It is also called, it is so called because it is the most important part of a sentence. So a verb may tell us what a person or a thing does. Like if I say he laugh, ya Harry laugh, ya Madhu laugh, so that is what laugh is, what he is doing. So a verb may tell us what a person or a thing does. Then it tells second what is done to a person or a thing also, like Harry is scolded, yeah, Harry is blamed. So blamed is what, Harry is blamed by Sohan or anyone, so blamed is what, a verb. And third one is what a person or a thing is, like the cat is dead, so that is also a dead. So cat is what, dead. So here a verb is a word used to tell or assert something about some person or the thing. Or you can like I had written, a verb is a word used to describe an action, state or possession. So possession means ownership. ऑनरशिप जिसकी मतलब कि ये मैं उस चीज़ का मालिक हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं. सो लाइक आई हैव गिवन दीज 3 words. You can see that action, state or possession. Possession, ownership, action, that is a doing word. We always from very small age we came to know that a verb is an action word. So वहाँ पर क्या हो जाता है, action, फिर आता है आपका स्टेट और फिर आता है पोजेशन. सो मैंने यहाँ पर क्या दिया, आई हैव गिवन द 3 एग्जाम्पल्स हेयर एंड द एग्जाम्पल्स आर लाइक आई एम टीचिंग इन क्लास. सो व्हाट इज दिस, टीचिंग इज योर एक्शन, सो दैट ऑल्सो कम्स इन योर definition of a verb. Then state, he is late. As we know that late is a adjective, but is क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका verb की तरह वर्क कर रहा है. So he is late, he is subject and is your state, it is also telling you the state. So and late, you all know that that is your adjective. Now the third is he has a house. अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपका ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और हाउस आपका ऑब्जेक्ट है. बट एक ऑब्जेक्ट क्या पोजेस कर रहा है, वो सब्जेक्ट क्या पोजेस कर रहा है, उसका ऑनरशिप कैसे पता चल रहा है, ही हैज़. तो यहाँ पर हैज़ कैसा वर्क कर रहा है, इट इज़ वर्क लाइक अ verb, so that comes in your possession, that is ownership. So a verb is a word used to describe an action, state or ownership. So in this way we came to know that verb किस तरह से वर्क करता है, एक एक्शन की तरह भी, एक स्टेट की तरह भी और एक पोजीशन की तरह भी. नाउ यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो सेंटेंस इन इंग्लिश विदाउट अ वर्ब. अब मैंने कहा ही इज, अब ही इज क्या, ठीक है, ही इज़ इंजीनियर या फिर ही इज़ टीचिंग या फिर मान लो लाइक ही इज़ डूइंग सम वर्क, तो कोई भी सेंटेंस
कंप्लीट तब होता है जब उसका मीनिंगफुल मीनिंग निकल कर आए, ठीक है, एंड दैट विल बी अ वेरी मीनिंगफुल थिंग. तो अ सेंटेंस इज कंप्लीट ओनली अ वर्ड इज कंप्लीट, अ ग्रुप ऑफ ए वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो अ सेंटेंस इज, देयर इज नो सेंटेंस इन इंग्लिश विदाउट अ वर्ब. कोई भी एक ऐसा सेंटेंस नहीं होता है जहाँ पर वर्ब ना हो. नाउ आई विल गो विद द see, I have made some this one, your chart. You don't have to make this. I'm giving you this verb video for your small review. जो भी आपने आज तक पढ़ा है वर्ब के बारे में, उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ, क्विक रिव्यू दे रही हूँ, जिससे कि आपका एक बार से ये जितनी भी अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा वर्ब अभी तक, या कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं क्या है, वो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो आपको इसमें मैं जो आपको ये वीडियो दे रही हूँ वो उसमें समझ में आ जाएगा. लाइक टाइप्स ऑफ वर्ब. Now, basis of differentiation. So, I have on the basis of differentiation, verb are divided into three parts: function, object, and subject and tense. Now, function पे अगर verb describe हो रहा है, differentiate हो रहा है, so that is the main verb and the auxiliary verb. So, main verb act as a, your main verb is like your it act as a मेन वर्ब. लाइक हम लोग बोलते हैं ना आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या हो गया, ये मेरा एक मेन वर्ब है. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब और अ सपोर्टिव वर्ब. उसमें आपका वो फिर से डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी वर्ब में और मॉडल्स में. सो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ सपोर्टिव वर्ब, जो कि हेल्प करता है मेन वर्ब की. लाइक आई एम टीचिंग, तो एम क्या हो गया यहाँ पर, आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि आपका डिस्क्राइब करता है, आपको वो हेल्प करता है मेन वर्ब में. अब जैसे आर देखो मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि आर एक एग्जाम्पल है. ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी, क्योंकि अगर मैंने बोला दे आर वर्किंग, सो दे आर वर्किंग में क्या हो जाएगा, आर क्या है आपका ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब है जो कि टू बी में आता है. अभी मैं इसको भी समझाऊंगी प्राइमरी और मॉडल्स. तो आपका इस तरीके से क्या होता है कि मेन वर्ब ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ सपोर्टिव वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू टेल द डूअर, लाइक डूअर क्या कर रहा है, व्हाट द डूअर इज डूइंग, सो वो हेल्प करता है मेन वर्ब की. नाउ primary verb and modals. So primary verb, auxiliary verb is divided into two parts: primary verb and the modals. So primary verb is divided into another three parts, that is to be, to do, to have. तो यहाँ पर देखो मैंने इसीलिए आपको बताया है प्राइमरी में टू बी कौन से में आता है, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग. सो दीज कम इन योर टू बी फॉर्म. अब इसी तरह जल्दी से आप लोग मुझे बताओ टू डू में क्या है, डू, डज और डिड है. अब इसी तरह टू हैव में क्या है, हैज़, हैव और हैड. यू ऑल नो दिस कि प्राइमरी वर्ब जो होते हैं वो आते हैं टू बी, टू डू, टू हैव. एंड टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग. एंड टू डू में डू, डज, डिड. एंड टू हैव में हैज़, हैव और हैड. नाउ मोडाल्स. ऑक्सिलरी का जो सेकेंड पार्ट है मोडाल्स, एंड दीज इंक्लूड्स 8 वर्ड लाइक शैल, शुड, विल, वुड, कैन, could, may, might. So they are different, they are like वो अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा differentiate होते हैं. So modals I will be taking up tomorrow in the class. अभी like most of the students had asked about me that ma'am please explain modals. So modals एक अलग chapter भी आता है, तो इसको मैं आपको describe करूँगी, but tomorrow I will be taking this in the like whatever the video I am sending you, that will be in that video I will be telling you what is shall, should, what is the differentiate between the shall, should, will, would, can, could and may and might. So अभी मैंने आपको क्या बताया, that is primary, to be, to do, to have. अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, like he is healthy. ठीक है, अब यहाँ पर is क्या है,
ऑक्सिलरी वर्ब है बिकॉज टू बी इज देयर. सो यहाँ पर इज क्या, इट इज एक्टिंग लाइक अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट इज ऑल्सो टेलिंग द हेल्पिंग द मेन वर्ब ऑल्सो. ठीक है, वाई, बिकॉज ही इज हेल्दी. अब मैंने ये बोला लाइक अगर लाइक ही ईट्स हेल्दी फूड, लाइक इफ आई गो विद ही ईट्स हेल्दी फूड, अगर मैंने यहाँ पर लिखा ही ईट्स हेल्दी food, okay, that is the spelling mistake, healthy food. So student, here eats is what, that is a main verb. ठीक है, अब ये मेन वर्ब क्या बता रहा है. अगर मैंने यहाँ पर से बोला होता ही ईट्स, तो ईट्स क्या है, बस अब वो ही ईट्स है, मतलब वो खा रहा है. अगर मैंने यहाँ पर बोला हेल्दी फूड, सो दैट इज योर मेन वर्ब. अब यहाँ पे मैंने लिखा ही इज हेल्दी, ये भी क्या है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को इससे डिनोट करके. ही इज़ हेल्दी, तो ये मैंने बता दिया भाई कि हाँ ये सिर्फ हेल्दी है. और यहाँ पे मैंने डिनोट किया है कि ही ईट्स हेल्दी फूड, तो ईट्स क्या है, आपका मेन वर्ब है. सो इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब. सो जो भी वर्ब होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इट्स ऑलवेज हेल्प द मेन वर्ब बाय एडिंग विद द ऑक्सिलरी वर्ब. Okay students, so this is the main concept between main verb and the auxiliary verb. Now I'll come with the verb object. Like I have told you today, function के describe मैंने किया है main verb और auxiliary verb. Auxiliary verb is divided into two parts, that is primary verb and the modals. And I told you that modals I will be taking up the class in the next session, like tomorrow. And today I have explained you primary and modals, and now we will come with the verb object. Like verbs are differentiated on three parts: function, object and subject and tenses. Now today I will be taking up the object class. Now object here, as I have told you earlier in the rearrangement of the sentences also, कि transitive और intransitive verbs क्या होते हैं, like they need an object, that is a transitive verb always need an object, but intransitive verb they do not need an object. So as you all know that sentence always made up of three things, that is subject, verb and object. So subject is what, doer, verb is what, action, and object is what, your receiver. So transitive verb are those verb like that need an object. So a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over the doer or subject to an object, जहाँ पर हमें एक need होती है object की. For example, I have written here the example, the ants fought the wasp. Now ants क्या है बेटा, यहाँ पर subject है, doer है, वर्ब क्या है, फॉट है. अब उसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, सो दैट इज वास्प. सो द एंट फॉट द वास्प, दैट इज ऑब्जेक्ट. अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग. ठीक है, जहाँ पर वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड लाउडली. अब आपको पता है ही इज व्हाट, डूअर, सब्जेक्ट, वो हु इज अ डूअर हेयर, ही, दैट इज अ सब्जेक्ट, लाफ्ड वर्ब एंड लाउडली. तो लाउडली क्या है, एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रोनाउन है, आपका सब्जेक्ट है. तो लाफ्ड क्या है, वर्ब, और इसको क्या लाइक प्रोनाउन को और कौन चीज़ उसको कर रही है, दैट इज लाउडली. वो कैसे हंस रहा है, सो दैट इज योर एडवर्ब. अब यहीं पर अगर मैंने लिखा होता, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, नो, देयर इज नो ऑब्जेक्ट हेयर, सो दिस इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. अगर मैंने यहीं पर बोला होता कि ही लाफ्ड लाउडली, he laughed loudly at me. अब ये कंप्लीट होके क्या बन जाता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट हो गई है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट अब आ गई है एट मी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. नाउ मैं क्या बन गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि वो किस पे हंस रहा है, वो मेरे पे हंस रहा है, जोर से हंस रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एट मी मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज वाई दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब.
Okay, and this is your loudly is your adverb, so that's why it here there is no object here, so that is why it is your intransitive verb. सिंपल सा है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होते हैं और जहाँ पर इनट्रांजिटिव वो होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है. लाइक द एंट फॉर द wasp, या ही laughed loudly at me. So these are what the example of your transitive verb. So I guess student, this will be your more than enough. Tomorrow I will be taking up the class of your this one, your subject and tenses and modals. Thank you students, take care and bye bye.